Rahim. Today we learn about the complexity of algorithm, how to what's called as an asymptotic notation. Okay, asymptotic notations. So, what do you mean by asymptotic notations, and how we do the algorithm complexity, and what is it all about, right? So, first of all, if we have, say, for example, algorithm 1, algorithm 2, algorithm 3, algorithm 4, we got four programmers and four designers and algorithms who know design the algorithms, the algorithm designers, or who maybe the programmers or computer scientists or anyone. So they are giving us, we have some problem, and they are giving an algorithm to solve it. Now we have four algorithms. So how we can say which is better algorithm, right? So we have two considerations here. One is that if we say convert this into the program and run it onto the machine, one intuition was just create a program out of these algorithms and then run it on a computer. Now when we run it on a computer, it will be a problematic because there will be some computer very fast and some computer very slow, and maybe the A has done a wonderful algorithm but it is running this on a slow computer, and we think that A is not a the algorithm given by the A one is not a good algorithm, or alternatively A4 is has done a very not fast algorithm but it is running on a fast computer, giving us an impression that A4's algorithm is best, which is not. So we want to remove this machine dependence. We want to remove this what? Machine dependence. Dependent. Now, second thing is that we are saying that we don't want to have at all that you run it on somewhere, you convert it into program and run it. Rather, we will predict. We will not actually execute your code. We will predict whether your algorithm is better or not. And that is done by the asymptotic notations. Now, the second problem we have is maybe the instruction set architecture is different. For example, we are saying add a comma b. I want to add ab. Now, maybe the instruction set architecture, one algorithm runs on an instruction architecture which has the adder, right? Maybe this is not add, this is multiply. Okay, maybe one machine has an architecture which has a multiplier unit. So you are saying add, for example, multiply, for example, 2 comma 5. So you want to multiply. So multiplier unit will multiply just one step. 2 times 5 is 10. But if you give same thing to the maybe the different instruction set architecture computer which works your multiplication using the adders, will add it into 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. So 1 2 3 4 5 times. So that means it will take the same thing which was to add 2 5, even though both of the guys have written the same code, multiply 2 5. So both have written multiply 2 comma 5, but this machine is using different ISA, instructional architecture, using the adders. It takes 5 steps to do the same thing, and this one takes the only one step. Now when we, but this is actually the machine, this is the instructional architecture which is making the same code slower here and which is making the same code faster here, right? Now there are tons of other things which could be there. For example, you want to assign different machines assigned differently, and we have programs which are stored in the RAM, some stored in the cache, some have the internal architectures where they make a speed up. But again, we are talking about your algorithm, what you have done, your algorithm. But if we start executing it, it is about the machine because we are all the time optimizing the machines, right? So if we
keep the machine into consideration, we will never be able to say कि your algorithm was good or bad, because it could be the good or bad machine which is actually making your algorithm look good or make your algorithm look bad. So what we need is an abstract machine model. Abstract machine model. Now what does the abstract machine model mean? Is we are saying that we remove this machine thing from the algorithm. We are not going to convert this algorithm into program and run it on some machine and try to see how fast it goes, or because we have two things, performance in terms of time and in terms of space to calculate. Your algorithm is best in time or best in space, so whatever it is, right? Now space can be in terms of memory, how many memory it uses, or maybe the data, maybe you are using random dynamic allocation of arrays, you have a lot of memory to use, so how much space your program or algorithm is using in terms of data, or how much memory it's occupying in a RAM. We have to divide our we have to see, that's called space complexity. And same thing is the time means how fast your algorithm is. But if we start running that mesh code onto the machine, getting this point, so 100% there will be the impact of machine on your algorithm. And different people in a world write algorithms, and how can we say they have same machine? They cannot have same machines. एक के पास एक मशीन है, सम अदर्स है अदर मशीन्स, एंड अगर वो अपना उसका देंगे उसका टाइम देंगे कितना टाइम इलैप्स हो गया, it will have the great effect of the machine on that time, and we will be eluded to consider an algorithm best or worst because it was the worst or best machine or instruction set architecture. So we have to remove both things. So that is why we are developing abstract machine model. That means we remove the machine concept. Now how we will do? It's very simple. How we remove the machine concept, machine things. So what we first do is, if there is, for example, multiply, there is what? Multiply, say you are multiplying 2 and 3 or whatever, we consider it as a one step. We consider as what? One step. We don't worry if we tomorrow apply this on a adder machine with the adder, it will take it a 5 steps or 10 steps or 20. We don't care, because we are not worried about the machine, we are worried about the algorithm. So algorithm, if you have written multiply and other guy is also written multiply, we say it is a one step. It is a what? One step. So we say all instructions take one step. So every instruction we have, so all instructions take one step. This is a one simple thing we are doing to nullify the machine, that there is no machine concept now, because whatever the instructions architecture is, we don't care. Whatever instruction set architecture you have, we don't care. We are saying all the instructions, they just take one step. You have, for example, mul 2,4, it is just one step. So any machine, we don't want to run it, we just see if your algorithm has this, it is one step. So we calculate the number of steps. We calculate what? So how many steps you are incurring in your program, that will tell me the how many steps you have. But what is asymptotic? That will be after that. For example, if we have to calculate steps, we want to find the maximum of, say, n numbers, max of n numbers. We are scanning n numbers and we want to see what is the maximum of these n numbers, right? So how we just write it, just write it in C code. We should write algorithm only, but just write it in a C, because we are reading C. How we create this max n numbers in C? So Sir, using for loop. using the loop, you know? Yes, sir. Sir, even arrays must take. नहीं एरे में नहीं करेंगे, सिंपल करेंगे हम नंबर करते जाएंगे इनपुट हम, और लास्ट में हम बताएंगे कि कौन इन सब में बड़ा था. फॉर एग्जाम्पल हम यूज़र को बोलेंगे बताओ दे दो आपको 50 नंबर, हम स्टोर नहीं करेंगे कुछ, ठीक है? वी आर नॉट गोना स्टोर इट, वी आर नॉट गोना स्टोर एनीथिंग, वी आर जस्ट डूइंग इनपुट, से 100 नंबर्स एन नंबर जितने भी नंबर्स हैं,
and at the end we say who was the bigger. ठीक है? Okay. So help me in this. So hash include and all. ठीक है ना? बिल्कुल सर. वो तो पता ही है हमें. उसके बाद जो मेन हम शुरू करेंगे, ओके, व्हाटएवर जो भी इसके साथ है. उसके बाद हमारे पास पहले एक रहेगा ना लिमिट, जितना n है, n कितना है. फॉर एग्जांपल आपके पास 100 है n. ठीक है? तो ये हम यूज़र को भी पूछ सकते हैं भाई कितने नंबर देने आप. अभी हम 100 नंबर देते हैं. चलो 100 दिया डायरेक्ट हमने. ओके. ओके सर. ये हो गया n. और हमें नंबर पकड़ने हैं ना, वो हम नम में पकड़ेंगे. और लूप वेरिएबल आई. ठीक है? और अगर कुछ चाहिए वो देखेंगे. पहले हम एक नंबर पकड़ेंगे. सर प्रिंट एंटर द नंबर. सो प्रिंट ऑफ करेंगे हम एंटर नंबर. एनी नंबर, हाँ, जो आपकी मर्जी होगी पहली बार. और इसको हम स्कैन करेंगे. वी विल स्कैन ऑफ करेंगे हम. वो किस में पकड़ेंगे हम? परसेंट नम में. डबल क्लोज एम्परसेंट ऑफ नम में पकड़ा मैंने ये नंबर. ठीक है, हो गया. और मैं मानूंगा भी जो ये था ना पहला नंबर, मैं मानूंगा यही बिग है. यस सर. इसलिए मैं यहाँ पे एक बिल्कुल रखूँगा सर. वेरिएबल, एक रखूँगा बिग. मैं कहूँगा यही बिग है, तो मैं कहूँगा बिग इज इक्वल टू नम. इक्वल टू नम. तो जो पहला आपने ये नंबर दिया वही बड़ा है. ठीक है, ओके. अच्छा जी. उसके बाद हम लूप चलाएंगे. क्या चलाएंगे? लूप हम चलाएंगे फॉर आई इज इक्वल टू 1 से चलाएंगे, क्योंकि एक तो आ गया ना नंबर, 0 वाला आ गया. ठीक है. आई लेस देन नम. आई लेस देन n. नम कैसे? एन. बिल्कुल सर. एन. आई लेस देन n, आई प्लस. ठीक है. तो ये चीज़ मैं फिर से करूँगा यहाँ पे. ये चीज़ ना जो यहाँ पर है ना. यस सर. एंटर नंबर. कैन आई सेलेक्ट दिस? सेलेक्ट दिस होल थिंग. डैम. छोटा बड़ा नहीं हो सकता है क्या? जाने दो. कम वी विल से प्रिंट एफ. ये इस फॉर लूप के अंदर है ना. बिल्कुल सर. यही कहेंगे एंटर एनी नंबर. है एंटर नंबर स्कैन अप परसेंट इन नम. स्कैन एफ डालेंगे हम नम में वो. ठीक है ना. यही सेम जो यहाँ पे था वही लिखेंगे. हो गया. तो यस सर. अब हम क्या देखेंगे? जो ऑलरेडी मेरे पास बड़ा नंबर है, क्योंकि मैंने पहली बार एक नंबर दिया ना. फर्ज कीजिए मैंने दिया नंबर 7. क्या दिया नंबर? पहली बार 7. यहाँ पे वो नंबर गया बिग के अंदर, 7 के अंदर. अब मैं फिर से नंबर मांग रहा हूँ ना दूसरी बार. जब ये Yes, sir. लूप, जब ये फॉर लूप पहली बार चली, अब ये पहली बार जो मांग रहा है नंबर, कितने भाई नंबर आप दे दो यहाँ पे. फर्ज कीजिए इसने यहाँ पे नंबर दिया 8. क्या दे दिया? 8. अब मैं देखूंगा जो बिग में है क्या है. बिग ग्रेटर देन है नाम से या कि नहीं. हाँ, मानो अगर जो नम है, जो अभी आपने नंबर दिया, वो बड़ा है जो बिग में था. ठीक है. तो बिग में कौन जाना चाहिए? नाम. है ना. वरना तो कुछ करो ही मत. एंड दैट्स इट. ये फॉर लूप यहाँ ख़त्म होगी. और यहाँ पे हम कहेंगे प्रिंट एफ, जो बड़ा नंबर है ना, द बिगर नंबर इज इक्वल टू परसेंटेज डी डबल कोट क्लोज कामा कौन? द बिग. बिग. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं यहाँ Yes, पे sir. पहले यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे n इज इक्वल टू 1, जब पहले मैं यहाँ पे मैं एक नंबर पकड़ूंगा नम में. ठीक है. पहला नंबर पकड़ा मैंने. फ़र्ज़ कीजिए आपके पास 3 नंबर पकड़ने. कितने पकड़ने? 3. तो पहला नंबर आपने दिया फॉर एग्ज़ाम्पल 4 नंबर पकड़ने हैं. ठीक है. हम पहला नंबर हम रखेंगे 2. क्या रखेंगे? 2. पकड़ा आपने 2. वो किस में जाएगा? वो 2 हो जाएगा सर बिग में. हम मान के चलते हैं कि ये हो बोर्ड यही बड़ा. बट मे बी दिस इज नॉट बिगर. नाउ आई एम एंटरिंग द लूप. आई विल गो अप टू द एन. मे बी एन इज ओनली 3. n is 4, sir. for example. N is 4. So this will run now. This loop will run for how many times?
3 इफ n इज times 4, 0 to 3 नहीं 0 नहीं 1 से चल रहा है ना, क्योंकि एक तो पकड़ा ना हमने या 1 ऑलरेडी, से एक बिल्कुल सर ऑलरेडी पकड़ चुके चलिए ना। सर इट बिल्कुल विल सर इट विल रन फॉर P 1 2 एंड 3 को 3 बार चलेगा। बिल्कुल सर सो अगर n 4 है तो ये कितनी बार चलेगा? 3 बार। 3 सो बार टोटल अगर मैं कहूँगा ये n है तो ये कितनी बार चलेगा? n n माइनस वन minus 1 टाइम्स, n माइनस 1 टाइम, सीधी सी बात है, चलेगा ना, ताकि ना n यस माइनस सर 1 टाइम्स। बिल्कुल सर सो वट एवर दैट इज। अब मुझे ये बताओ n माइनस 1 टाइम चलेगा, n टाइम चलेगा, पता बताओ, क्योंकि सर ये लास्ट में भी ये चलेगा चेक करेगा ना, मैं बताऊंगा आपको, ये लास्ट में भी चेक करेगा ना, ये बराबर n टाइम चलेगा। अभी छोड़ो इसको, यस सर मैं बताऊँ, हमें वही काम करना है, लेकिन पहले बताओ, पहले ही समझते हैं। अब दूसरा यहाँ पे लूप में गया है फॉर आई इज इक्वल टू 1, ठीक है, उसके लिए आप यूजर को बोल रहे हैं चलो नंबर दे दो दूसरा। अब ये दूसरा नंबर जो इस वक्त दिया ना, इसने मानो 3 दिया, क्या दिया? जो 3 नेक्स्ट नंबर दिया इसने 3 दिया। क्या जो नम है, यानी कि उसमें क्या है 3, अब क्या वो बड़ा है बिग 3 से? यस सर तो क्या बिग 2 है कि 3? बिग है सर 2 कैसे बिग? नहीं, बिग में है 3 2 है सर लेकिन, सर हाँ बिग सर में बिग, ऊपर हाँ हाँ, इफ कंडीशन में बिग 2 है यहाँ पे अभी बिग 2 है ना, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ क्या बिग में कौन जाना चाहिए अब? अब बिग में जाएगा ना सर नाम सो 3 3 जाएगा जाएगा, सर। तो बिग अपडेट होगा 3 बनेगा, ठीक है ना। ये वापस जाएगा, लूप जाएगी वापस, आई प्लस प्लस आई इज इक्वल 2। अब पकड़ेगा दूसरा नंबर। सो 0 के लिए हमने यहाँ पे पकड़ा है ना, अब 1 2 पकड़ा बिल्कुल सर हमने, तो पहली बार पकड़ा था 2, अब 1 के लिए पकड़ा 3, अब बनेगा i2, उसके लिए एक और नंबर पकड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल आपने दिया 7, अब कौन बड़ा है? 7 सो बिग, हाँ नम जो नम है वो 7 है, 7 बड़ा है 3 से, तो इसलिए बिग में जाना चाहिए 7। तो 7, अब 7 बिग में 7 जाएगा, ये बिग मेरे पास है लास्ट में, इसमें जाएगा 7। आई प्लस प्लस आई बन गया 3, क्या 3 लेस देन 4 है? हाँ है, तो पकड़ो दूसरा नंबर। फ़र्ज़ कीजिए इसने नंबर पकड़ा 0, क्या पकड़ा नंबर? 0 क्या 0 बड़ा है बिग? बिग में कौन है? 7 बैठा है ना, 7 हाँ, क्या 0 बड़ा है 7 से? नहीं तो ये चीज़ होगी नहीं, ये इफ़ चलेगा नहीं, तो ये यहाँ पे आएगा और ये वापस जाएगा इसके पास, आई प्लस प्लस आई बनेगा 4, क्या 4 लेस देन 4 है? नहीं है, ये बाहर निकलेगा, फॉल्स ये बाहर निकलेगा। तो जिस जिस वक्त इसने n अगर 4 था ना, तो ये 4 बनेगा आई, है ना। तो जो ये सर जो 4 लास्ट बनेगी जो लास्ट में फॉल्स बनेगा ना, ये फॉल्स कंडीशन, यस फिर ये बाहर निकलेगा ना उससे, तो ये यस सर बराबर एन टाइम चलेगा, ये आई लेस देन एन जो है ना, ये एन टाइम चलेगा बराबर, क्योंकि लास्ट में ये एन बनेगा 4 ही बनेगा। क्या 4 लेस देन 4 है? ना है नहीं, तो ये बाहर आएगा, ठीक है। सो ये बाहर आए आके आपको जो बिग में होगा वो हम प्रिंट करेंगे, बिग में 7 है तो 7 ही प्रिंट होगा, 7 प्रिंट ठीक है। अब इसको हम हिसाब किताब करेंगे, क्या करेंगे कि हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टेप्स, हम क्या करें, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ स्टेप्स हम कह रहे हैं कि भाई साहब हमें नंबर ऑफ स्टेप्स चाहिए। तो पहली काम जब मेन शुरू होगा, जो हर एक इंस्ट्रक्शन है, n इज इक्वल टू 1 है ना, n इज इक्वल टू 100, हाउ मेनी टाइम्स इट विल रन? 1 टाइम, एवरी इंस्ट्रक्शन रन 1 टाइम, राइट। सो ये भी चलेगा 1 टाइम, फिर नम हो जाएगा, आई चलेगा 1 टाइम, बिग चलेगा 1 टाइम, हो गया ना डिक्लेयर, ये 1 2 3 4 वेरिएबल्स हो गए डिक्लेयर, ठीक है। तो हमने क्यों n 100 रखा सेट करके? अगर 100 बार पकड़ना चाहते हैं, जितनी बार आपकी मर्जी है, ठीक 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 ओके है। ओके फिलहाल हमने n में 100 डाला, तो ये कितनी बार चलेगा? एक स्टेप, नम डिक्लेयर किया तो एक स्टेप, है ना, बिकॉज वी आर सेइंग, हम देखेंगे कि कितने स्टेप्स आपके प्रोग्राम के अंदर है, ठीक है, यस सर because we want to build the abstract machine model, so we are trying to see how many what steps how many steps we have. So we are saying 1 1 1 1. Now tell me this, printf enter any number, printf 1 time चलेगा, scanf 1 time चलेगा, है ना। अच्छा, यस सर इंटरनली वो कैसे करेगा काम, फिर कंप्यूटर वगैरह हमें उस पर चिंता करने की ज़रूरत, हम सिर्फ देखेंगे नहीं कि है भाई साहब आपके पास कितने स्टेप्स हैं, ये भी चलेगा 1 टाइम। ये आई इज इक्वल टू 1 इनिशियलाइज कितनी बार होगा? सर एक ही 1 बार टाइम होगा, पहली बार। ये कितनी बार चला?
ये चला फॉर 1 4 बार 2 4 बार 3 4, ये बराबर n टाइम्स चला, है ना। ये इंक्रीमेंट कितनी बार यस होगा? सर, ये होगा सर 1 2 4 3 बार 4 बार। कैसे होगा 4 बार? देखो जब 1 3 था, बार सर 3 बार जब 1 1 था था ना ना, जब पहले 1 था, जब 1 था, जब i1 था, क्या था? तब तब ये चला 1 और 2 लास्ट में i प्लस प्लस होगा, हो गया एक बार। जब i2 था, 3 था, जब i4 है ना, 4 इज लेस देन 4, नो फॉल्स, उस वक्त फिर तो ये नहीं चलेगा ना i प्लस प्लस, i5 नहीं बनेगा ना, i4 पे ही बाहर निकलेगा। सो इट विल रन n-1 टाइम्स, ठीक है। ये प्रिंटफ एक बार चलेगा, ये स्कैनफ एक बार चलेगा। इफ ये कंपैरिजन कितनी बार चलेगा बताओ कोई? 10 टाइम्स सर, हाँ, n टाइम्स। n-1 टाइम्स। कैसे n टाइम्स? लास्ट में तो ये चलेगा ही नहीं ना, ये मत घुसेगा इसमें। अच्छा ठीक, सब जब फॉल्स कंडीशन हो जाएगी 4 इज लेस देन 4 तब भी नहीं चलेगा। हाँ, ये तभी नहीं चलेगा ना। ये कितनी बार चलेगा? सर ये भी चलेगा n-1, क्योंकि जब ऊपर वाला नहीं चलेगा तो ये कैसे चलेगा? नो सर ये हकू वन थी सर, के वो मैं ये सर पाई कंडीशन के yes. साथ ट्रू किन फॉल्स। अस मानो वर्स्ट केस, अवश्य शासन, दैट इज वी हैव वर्स्ट केस, बेस्ट केस एंड एवरेज केस, ठीक है। सर अगर इस वर्स्ट तब ये केस रोज अगर सर चलेगा, निमो, तब ये रोज चलेगा, बिल्कुल सर, पाइक ना। बिल्कुल सर, ये चले n-1 चलते टाइम्स, n-1 टाइम। चल ना, ये कई फिर चल, ये चल लास्ट फॉर मोकली चले एक फिर। सर एक फिर सो टोटल कितने आ गए हमारे पास? हाउ मेनी टोटल? वी गॉट 1 2 3 4 5 6, ये कैसा ना ऐड मान में, हाँ ये Yes, ऐड हो, sir. ये ऐड हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे हम इसको। ये 1 1 2 3 4 5 6 7 1 है पहले, है ना, 1 + 1 + 1, 1 2 3 4 5 6 और 7 बार। उसके बाद क्या है ये एक बार को 8 बार, ये भी फिर है n-n टाइम्स, है ना, पर है पाँचों n-1। उसके बाद क्या है ये एक एक ये भी तो चलेगा n-1 टाइम्स, है ना। यस सर, ये कहाँ एक बार चलेगा? चलेगा ना, ये जितनी बार ये चला, ये चलेगा बिल्कुल n-1 टाइम्स, ये भी चलेगा n-1 टाइम्स, है ना। सो n-1 टाइम्स, n-1 टाइम्स, ये प्लस करना है, ये भी चलेगा n-1 टाइम्स प्लस n-1 टाइम्स, ये भी चलेगा वर्स्ट केस में चलेगा n-1 टाइम्स, हाँ, और ये चलेगा 1 टाइम। सो ये वंस आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ गए, और ये आ गया यहाँ पे 9। माइनस वंस कितने होंगे? 1 2 3 4, वो 5 बार आएगा ना। n कितनी बार है? n कितनी बार है? 1 2 3 4 5, वो 5n 5n + 5, 5n + 1 2 सर 6 बार है सर n, 6 बार है तो 6n + 5, ये आपकी इसकी कॉम्प्लेक्स निकलेगी 6n + 5। अब हमें ऐसे ही कोई एल्गोरिथम है, उसका लंबा चौड़ा निकलेगा। फॉर एग्जांपल 2n² + 5n + 6n + 7n 7 और समथिंग लाइक दैट। अब इससे कैसे पता चलेगा मुझे कि यीशा बेटर कि नीचू बेटर? तो लाउन कंप्यूट कर, ठीक है। अब हमें कंप्यूट हमें तो फिर इसमें करना है ना, फिर वैल्यूज फिट करने हैं n के, तब जाके फिर कंप्यूट करना है कि ये बेटर है कि ये बेटर है, हमें एक झलक से पता नहीं चलेगा। सो इसलिए हम चाहते हैं कि हम ग्रुपिंग करें। क्या करें? ग्रुपिंग। हम ग्रुपिंग करें कि भाई मतलब ये एल्गोरिथम वाले हैं, ये अच्छे हैं, ये एल्गोरिथम है, ये सारे के सारे। इसमें थोड़ी फ़र्क हो सकती है, क्योंकि देखो अगर मेरे पास 2 एल्गोरिथम्स हैं, जैसे 6n + 5, एक और का निकला 6n + 20, है ना, एक और का निकला 7 + 40, लेकिन ये तीनों के तीनों जो है ना, इनमें इतनी फ़र्क नहीं है। अब बेसिकली अगर n छोटा है, क्या है, बिकॉज वी वर्क ऑन द स्केलेबिलिटी, वी वर्क ऑन व्हाट। जब n छोटा है, फर्ज कीजिए n आपके पास सर्च करना है, आपके पास 2 4 नंबर्स हैं 2 3 4, अब इसमें आपको सर्च करना है, ठीक है। ये इसमें आप लीनियर सर्च लगाओ या बाइनरी सर्च लगाओ, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी, ठीक है। इनफैक्ट इसमें लीनियर सर्च ही बेटर पड़ेगा आपको। बिल्कुल सर।
तो हम क्या कहते हैं काम कि भाई हम ये ऐसा करते हैं कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं काम कि हमने एक बिज़नेस शुरू किया, ठीक है, हम मिलके बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है, हम मानो तीन लोग हम आपस में बिज़नेस कर रहे हैं, वी आर 3 पीपल गोइंग फॉर अ बिज़नेस, ठीक है। आई एम द जुनैद, मैंने फॉर एग्जांपल निकाला 10 लाख रुपए, ठीक है, और जो बी है उसने निकाला 5 लाख रुपए या 5,000 रुपये वट। अब जो सी है क्या है, यानी कि ए ने निकाले 10 लाख रुपए, ठीक है, बी ने निकाले यस 10,000 रुपये, 10,000 ओनली, ठीक है, ये 10 लाख निकाल रहे हैं, 10,000 निकाल रहे हैं, और सी ने निकाले 10 रुपये, ठीक है। हम एक बिजनेस करने जा रहे हैं, व्हाट विल टेल अबाउट सी? सी ने बहुत कम निकाले। सो इससे कुछ फर्क पड़ेगी? इसके 10 रुपये से कुछ सर फर्क पड़ेगी? नो सर, इससे बहुत कम। जो ए है इससे फ़र्क पड़ने वाली है, क्योंकि ये गवर्निंग है, बी भी उतना गवर्निंग नहीं है कि उसने 10,000 रुपये निकाले, उतना बड़ा रकम नहीं है, मानो ए उसने 10 लाख रुपये निकाले, यानी कि इट्स ए बिग अमाउंट, राइट। तो जो बिग है उसका वैल्यू है, ठीक है। तो हम ऐसे ही काम करते हैं कि अगर आपके पास 6n+5 है, 6n+5, अभी इसकी निकली कॉम्प्लेक्सिटी हमें जो हम मैक्सिमम नंबर निकाल रहे थे, हम कहते हैं कि भाई साहब जो ये कांस्टेंट है इसका उतना वैल्यू नहीं है, n का वैल्यू, क्योंकि मे बी n टेंड्स टू, इसमें 10 लाख, n का वैल्यू 10 लाख आ गया, ठीक है, तो वो बाकी 5-6 ये उतना फ़र्क नहीं करेंगे जितना आपका n करेगा। क्या करेगा? n, एंड द n विल बी द गवर्निंग टर्म, ठीक है। सो जो बिगेस्ट टर्म आपके पास है आप वो ले लो। बाकियों ने 1 रुपये निकाला, 2 रुपये निकाले किसी ने बिजनेस के लिए, लेकिन जो 10 लाख रुपये आप सिर्फ उसका नाम बोलो, बाकियों का 2 रुपये वाले का क्या नाम लेना, ठीक है ना, इट डजेंट मैटर। सो हम उसी तरीके से कहते हैं जो कॉन्स्टेंट्स वगैरह है दे डोंट मैटर, दे डोंट, what matters मैटर। most is the governing term when n tends to be large। जब n लार्ज होगा हमें उस वक्त पता चलेगा कि एल्गोरिदम बेस्ट है कि नहीं है। छोटे एल्गोरिदम्स में छोटा डेटा आपने दिया, आपने एरे दे दी बहुत छोटी, उसके बाद आप कह रहे हो मेरा एल्गोरिदम बड़ा फास्ट है। अरे भाई उसमें थोड़ी आपको देखना है, हमको देखना है जब आपको डेटा बहुत ज़्यादा देंगे हम, है ना। आप यस कहते हो सर, कि मैं बड़ा जोक वाला हूँ, मैं बड़ा बड़ा दिल वाला हूँ, और मैं सिर्फ हंसता हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आता है। अरे नॉर्मल कंडीशन में थोड़ी पता चलेगा आपको, जब हम टेंशन में डालेंगे आपके ऊपर टेंशन्स आएंगे, आपके पास प्रेशर आएगा, उसके बाद आप चलाना शुरू करोगे, फिर आपकी वो कूलनेस ख़त्म, ठीक है। सो हम कहते हैं कि आपको अगर एल्गोरिदम टेस्ट करना है, डेटा लार्ज स्केलेबिलिटी चेक करनी है, क्या करनी है चेक? स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी, यानी कि बहुत बड़ा डेटा जब n गोज लार्ज, देन वी कैन से कि भाई आप अगर किसी का n स्क्वायर निकल रहा है, डेफिनेटली इसके तो बहुत कंपटीशन लग रहे हैं ना, डेफिनेटली सर। है ना, इसमें तो बहुत ज़्यादा लगेगा n स्क्वायर, या अगर जो n के हिसाब से तो n स्क्वायर बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल n 10 है, ये 10 का स्क्वायर है, ठीक है ना, दैट इज इट इज़ 100। अगर ये 100,000 है, मानो ये 1000 है, तो वो इसका स्क्वायर है, सो वो तो और 6 ज़ीरो दे देगा, वो तो 10 लाख बनेगा ना। सो n स्क्वायर विल बी ह्यूज। सो अगर n स्क्वायर यहाँ पे आया आपकी कॉम्प्लेक्सिटी में और n आया और बाकी कॉन्स्टेंट्स आए, हम कहते हैं कि इन सब को बाढ़ में जाने दो, जो गवर्निंग टर्म है वो बताओ, और वो आपका बताएगा कि क्या एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी है आपके एल्गोरिथम की। एंड दिस थिंग इज कॉल्ड एसिम्प्टोटिक। व्हाट इज कॉल्ड? एसिम्प्टोटिक। This is called asymptotic. And for the asymptotic, we have 3 asymptotic growth functions. We have 3 asymptotic growth functions. ठीक है ना। ओके सर। पहला हमारे पास है बिग अपर बाउंडिंग, इसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं?
अपर बाउंडिंग, ये ठीक से लिख नहीं रहा ना, पेन भाग रहा है मुझे। अपर बाउंडिंग फंक्शन, एंड इसको हम कहते हैं बिग ओ। क्या बोलते हैं? बिग ओ, अक्सर हम यही करते हैं इस्तेमाल, जो कि हमें वर्स्ट केस के लिए लगता है। किसके लिए लगता है? वर्स्ट केस, एक और हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड एज लोअर बाउंडिंग। दैट्स कॉल्ड एज व्हाट? लोअर, एंड लोअर बाउंडिंग फंक्शन जो हमारे पास है, वी शो इट बाय द ओमेगा। यू कॉल इट बिग ओमेगा, बिग ओमेगा। ओमेगा, और तीसरा जो हमारे पास है, दैट्स कॉल्ड ऑर्डर फंक्शन। ये बेस्ट केस के लिए और ये वर्स्ट केस के लिए ऑर्डर फंक्शन। जो हमारी ऑर्डर फंक्शन है, इसको हम h से दिखाते हैं यहाँ पे, एंड समटाइम्स वी ऑल्सो से इट बिग थीटा। वी ऑल्सो से व्हाट? बिग थीटा नोटेशन। ठीक है ना? व्हाट इज द बिग ओ और बिग ओमेगा नोटेशन? दैट इज द अपर बाउंडिंग, दैट इज व्हाट? अपर बाउंडिंग। अपर, अबे बिग ओ क्या है? इट इज बिग ओ, ओ एच, ठीक है, नॉट ओ। लिखते तो ऐसे ओ और बीच में डॉट डालता है, लेकिन इट इज बिग ओ नोटेशन। बिग ओ की डेफिनेशन जो है वो ये है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जो ना अभी निकला एक्सप्रेशन, जैसे आपको अभी निकला ये 6n+5 है ना, ऐसी कोई एक्सप्रेशन है, कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है, हम कहते हैं कि ये बिग ओ ऑफ दूसरी एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स। मेरे पास दो फंक्शन है, एक है एफ ऑफ एक्स, दूसरी है जी ऑफ एक्स। यानी कि हम कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज ए बिग ओ ऑफ जी ऑफ एक्स। कब? इफ there exists some constant c1, some constant c1, okay, and x naught greater than 0, such that जो आपका f of x है, it will be always less than or equal to g of x for all सब वैल्यूज़ के लिए। उसके बाद जब जो भी आप x करोगे, जो x होगा वो दैट शुड बी ग्रेटर देन दैट x नॉट। जो हमने x नॉट लिया, उसके बाद जो भी हम x लेंगे, फॉर ऑल, दिस मीन्स फॉर ऑल, ये ना ए उल्टा लगाते हैं ना ऐसे, इट्स कॉल्ड फॉर ऑल। यानी कि उसके बाद सारे सब वैल्यूज़ के लिए जो भी x आएंगे, लेकिन x नॉट के बाद, x नॉट से पहले हो सकता है कि g ऑफ x ही आपका छोटा हो, लेकिन उसके बाद आपका f ऑफ x हमेशा छोटा रहना चाहिए। तो दिस विल बी वर्स्ट केस। डायग्रामेटिकली अगर आपको समझाऊं मैं, ये देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मेरा x वैल्यू है, ओके, और ये मेरी f ऑफ x है। फॉर एग्जांपल दिस इज माय से दिस इज आवर f ऑफ x। किसी एक पॉइंट पे, फर्ज कीजिए इस पॉइंट पे ये x नॉट है, g ऑफ x जो है स्टार्ट में इससे छोटी है, ठीक है, मैं ब्लू से बनाता हूँ g ऑफ x। अब देखो ये g ऑफ x जो है इस f ऑफ x से छोटी है, क्योंकि लो पे आ रही है ना, लेकिन x नॉट के बाद हमेशा ये इससे बड़ी आ रही है, यानी कि ये c1 टाइम्स g ऑफ x है। यानी कि कुछ कांस्टेंट हम मल्टीप्लाई करेंगे g ऑफ x को, अब इस x नॉट के बाद वो हमेशा f ऑफ x से बड़ी रहेगी, ठीक है, बस में आई। तो आपका जो f ऑफ x है दैट विल स्टे इन दिस जोन, जो ये जोन है। देन वी कैन से, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि भाई साहब जो आपका f ऑफ x है, अगर वो बिग O ऑफ g ऑफ x है, वो उस सूरत में बिग O ऑफ g ऑफ x है, अगर इफ़ देयर एग्जिस्ट सम कांस्टेंट c1, की कोई कांस्टेंट c1 है, उसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा g ऑफ x के साथ, आफ्टर सर्टन x नॉट वैल्यू, इस वैल्यू के बाद आप देख रहे हो कि इस वैल्यू से पहले तो इवन ही छोटा था g ऑफ x, लेकिन इस वैल्यू के बाद ये हमेशा बड़ा रहेगा, किसको? f ऑफ x के साथ। देन वी कैन से दिस बिग O। अब इससे क्या फ़ायदा आएगा हमें? इससे हमें अपर बाउंड मिलेगा कि भाई जो मेरा एल्गोरिदम है, जो f ऑफ x है, उसको अगर मैं कुछ वैल्यूज़ दूंगा, ठीक है, उसके बाद मैं चेंज करूँगा उसको, इससे ज़्यादा
ये वर्स्ट नहीं जाएगा, यानी कि इससे ज़्यादा टाइम इसको नहीं लगने वाला. सो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज एन बिग ओ नोटेशन. दैट्स द बिग ओ फंक्शन. ओके, और अपर बाउंडिंग फंक्शन, यानी कि ये वाली जो फंक्शन है अब ये अपर बाउंड बन गई, यानी कि इस एफ ऑफ एक्स की. ठीक है, इसी तरीके से अगर आप कहोगे बिग ओमेगा, दूसरे हमारे पास कौन है, बिग ओमेगा. हम थोड़े एग्जाम्पल्स करेंगे फिर आपको ये समझ आएगा अच्छे से. बिग ओमेगा, दिस इज और बिग ओमेगा. ठीक है, हम उसमें क्या बोलते हैं कि भाई एफ ऑफ एक्स अगर हम कहना चाहते हैं कि ये बिग ओमेगा ऑफ जी ऑफ एक्स है, उसका मतलब है कि इफ देयर exists c1 some constant c1 or x not greater than 0 such that उल्टा होगा उसका, क्योंकि ये लोअर बाउंड है ना, such that जो आपका f of x है it will be always lesser than no greater than or equal to आपका किसको, जी ऑफ c times g of x. कि कोई कांस्टेंट c था उसको मल्टीप्लाई किया आपने g ऑफ x को, आफ्टर एंड नॉट इट विल ऑलवेज स्टे लेसर फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू x नॉट. यानी कि अगर हम लेस देन या ग्रेटर देन सर, ग्रेटर देन यहाँ पे था ना लेस देन, एफ ऑफ एक्स इसके लेस देन थी, यानी कि अपर बाउंड था. अब एफ ऑफ एक्स जो है वो बड़ी रहेगी, क्या रहेगी, बड़ी या इक्वल रहेगी जी ऑफ एक्स के. यानी कि मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास ये x है और मान लीजिए कि मेरे पास ये वाली मेरी जो ये है ये f ऑफ x है, मान लीजिए ये मेरी f ऑफ x है ये वाली. ठीक है, ओके. ओके सर. अब जो मेरी g ऑफ x है क्या है, हालांकि ये मैं ब्लू से बना रहा हूँ, हालांकि ये मानो ये वाला पॉइंट जो है ये आपका x नॉट है, x नॉट तक तो ये बड़ी आ रही थी ना. यस सर. लेकिन उसके बाद हमेशा जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा c कोई कांस्टेंट और आफ्टर द x नॉट ऑफ g ऑफ x विल बी ऑलवेज लेसर देन f ऑफ x, यानी कि f ऑफ x विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू g ऑफ x फॉर ऑल x. इसके बाद जितने भी आप x के वैल्यू दे रहे हो, ठीक है, उन सब के लिए जो आपका ये है f ऑफ x इट विल बी ग्रेटर देन g ऑफ x, यानी कि आपका f ऑफ x इसके दरमियान रहने वाला है. और ये आपका लोअर बाउंड आ गया, क्या आ गया सर. फिर वो जो आपने ऑल वैल्यू ऑफ x रखा है ना, वो भी आपने ग्रेटर देन x नॉट रखा है ना, रखेंगे ना, वो तो चलेगा ना आगे, वो तो इंक्रीमेंट होगा ना. मतलब इस x नॉट के बाद जितने भी वैल्यू आती हैं, ये x नॉट मान लो 5 था, उसके बाद तो आएगा ना 6 7 8 9 10 जितने भी x नॉट x के वैल्यूज़ हैं, यानी कि x जो आपका है, जो भी आप x वैल्यूज़ लोगे अब x नॉट के बाद, जो भी x नॉट ये था ना मेरा से x नॉट Yes, इज sir. 5, उसके बाद ये सारी वैल्यू x है, दे हैव टू बी ग्रेटर देन. वो तो दोनों सूरत में आएगा ना. यस सर, यस सर. जो आपका x है ठीक ठीक. x नॉट के बाद तो x जो भी आप लोगे वो तो इंक्रीज ही होगा ना. ग्रेटर देन x नॉट से, यस सर. उन सब वैल्यूज के लिए आपका g ऑफ c1 टाइम्स यानी कांस्टेंट टाइम्स g ऑफ x हैज टू बी ग्रेटर देन f ऑफ x. एंड इन लोअर बाउंड, अपर बाउंड केस में, इन yes, लोअर sir. Lower बाउंड bound में इट हैज टू बी लोअर. lesser than, yes sir. और जो तीसरा मेरे पास अब है व्हाट इज कॉल्ड एज अ बिग थीटा नोटेशन, और वी से इट एज एन ऑर्डर फंक्शन. ठीक है, written with the h some symbol. सो इसमें हम कह रहे हैं कि मेरा जो f ऑफ x है दैट अगर आप कहना चाहते हो कि भाई साहब ये आपका जो है बिग थीटा ऑफ g ऑफ x है, वो उस सूरत में होगा इफ़ देयर एग्जिस्ट, इफ़ There exists any constant. there exists two constants, but if there Two. exists c1 comma c2 दो constants, और x not Okay. greater than 0, x not greater than 0, Zero.
सच दैट कि C1 टाइम्स जी ऑफ एक्स, अगर मैं लूँगा, क्या लूँगा, C1 टाइम्स जी ऑफ एक्स, वो बड़ा रहेगा आपके एफ ऑफ एक्स से, और एफ ऑफ एक्स खुद छोटा रहेगा या बड़ा रहेगा किससे, C2 टाइम्स जी ऑफ एक्स से। ठीक है, फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू x नॉट। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ डायग्रामेटिकली, अगर आप देखेंगे इसको, ये मेरा ये है, फ़र्ज़ कीजिए मेरी ये एफ ऑफ एक्स ये है मेरी, ये मेन एफ ऑफ एक्स, ओके। मैं C1 टाइम्स दे रहा हूँ इसको, किसको, और ये मानो x नॉट है, ये वैल्यू x नॉट है। ठीक है, यहाँ तक ये छोटी थी, लेकिन इसके बाद ये हमेशा बड़ी रहेगी इससे। दैट इज़ C1 टाइम्स g ऑफ x इज़ द अपर बाउंड ऑफ द, यानी कि मुझे अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों निकलेगा, दैट्स द एवरेज केस बेसिकली। ये C1 टाइम्स g ऑफ x जो है, ये मुझे निकलेगा हमेशा बड़ा x नॉट के बाद, x नॉट के बाद, और कोई कांस्टेंट C1 था उसके बाद, तो ये हमेशा बड़ी ही रहेगी f ऑफ x से। ठीक है, और एक और फंक्शन मेरे पास है, वो बड़ी आ रही थी इस पॉइंट तक, लेकिन इस पॉइंट के बाद ये C2 टाइम्स g ऑफ x जो है वो छोटा रहेगा एफ ऑफ एक्स से आफ्टर दिस x नॉट। ठीक है, एनी फॉर ऑल x ग्रेटर देन x नॉट, उसमें हमेशा C2 टाइम्स g ऑफ n छोटा रहेगा एफ ऑफ n से, और C1 टाइम्स g ऑफ x बड़ा रहेगा एफ ऑफ x से। ठीक है, यस सर। बात समझ आई? सर ये इन बिटवीन रहेगा, C(1) से हाँ ऊपर और C2 नीचे। एग्जैक्टली, ये डेफिनेशंस है, Big theta. लेकिन हम करेंगे एग्जांपल्स जिससे आप ये समझोगे। ठीक है, फिलहाल आज मुझे लगता है काफ़ी है, हम कल इसके एग्जांपल्स बहुत सारी करेंगे, फिर आपको ये समझ आएगा Yes. अच्छे से। ठीक है, आई एम रिकॉर्डिंग ऑल्सो दिस थिंग, सो यू कैन गो फॉर रिविजन ऑल्सो। ठीक है, सर ये आप अपलोड करेंगे यूट्यूब पे ये यस वाली वीडियो? आई विल अपलोड दिस। ओके ठीक है ना, सो वी विल डू टुमारो लॉट ऑफ एग्जांपल्स एक्चुअली, हम लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, बबल सॉर्ट, ठीक है ना, फिर लास्ट बाद में जितने भी एल्गोरिथम्स करेंगे उनके ऊपर काम करेंगे हम, एंड वी अंडरस्टैंड कि भाई हम कैसे ये चीज़ करते हैं। ठीक है ना, वी अंडरस्टैंड दिस थिंग प्रॉपरली नाउ। ये डेफिनेशंस हमने की, लेकिन इसको समझेंगे अच्छे से हम विद एग्जांपल्स। ठीक हो गया? यस सर, यस सर। ओके ओके, चलिए फिर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम सर।